See, the information which the Supreme Court has asked is very simple information. This information is not something which requires any time to be delivered. This must be a ready information. The Association for Democratic Reforms has moved the Supreme Court with a contempt plea against SBI's failure to submit details of electoral bonds within the prescribed deadline. See, this order of the Supreme Court is in respect of an earlier order passed on 12th April 2019, when the Supreme Court had directed them to maintain these records. They should disclose it as early as possible, not that they take months to disclose it. पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? ये मूल मकसद क्या था? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। थोड़े महीने पहले ये इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया था. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭುಗಿಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅದೊಂದು RSS ಬಿಜೆಪಿ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನ ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನರ್ಥ? ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ಹಣ ಅದು ಯಾವ ಹಣ, ಯಾವ ಪಾಪದ ಹಣವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರಯ್ಯ ಅಂತ ದೇಶದ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯು ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋಣ. ಇದೆಂತ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ, ಅಥವಾ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪಾಕಿಗೆ ಘೋಷಣೆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಿರಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಕೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾನೂನುಗಳಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಂದು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುರುತನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7% ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದೆಂಬಂತಹ ನಿಯಮ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತ್ತು. IT, ED, CBI ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ. ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನ ಬಳಸಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಗೆದ್ದು ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದು ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಬಳಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತಹ ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದೊಂದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ का एक जजमेंट आया है. क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड, इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा.
लेकिन ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक, करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या अर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो? क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವವರು ಯಾರೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದ ಉಳಿವಿಗೆಯೇ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಂತನಾರ್ಹ ವಿಷಯ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು SIT ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೂಡ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಮರುಪಡೆದು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15ರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುವಂತಹ ಹಣ, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ನಾಗರಿಕ ಮತದಾರನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ SBI ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಕೇವಲ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3.5 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ವಿಚಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. See, the information which the Supreme Court has asked is very simple information. One side is the information about the buyers who bought the bonds, and for them, the information to be provided is who bought the bond, of what denomination, and on what date. Essentially, the buyer-wise information of total bonds purchased. That is what is the information on one side. The second information is that which party encashed how much of the electoral bonds. Again, you can provide this denomination-wise. The second information is political party-wise, the proceeds received from the electoral bonds. These are the two simple information. These are all available in the account of the SBI. Because these buyers also had either the accounts or they deposited cash, and this was temporarily kept into an account there, right? So this information is not something which requires any time to be delivered. This must be a ready information. What SBI seems to have said is that they will collate the information for each bond, that each bond who bought
and who then delivered to which political party. Now, this information, in my assessment, is not possible to be generated. This information is not what even the court has asked for. And therefore, using this as an excuse for getting 3 months' time is actually ultimately going to be told that we can't generate this information. See, this order of the Supreme Court, this specific order directing the SBI, State Bank of India, to furnish the information is in respect of an earlier order passed on 12th April 2019, when the Supreme Court had directed them to maintain these records. And from the application, what I've seen of the application, they say there are 22,000 such bonds, and they've maintained records 22,000 at one end and 20. This is just 44,000. I'm sure these records have been maintained both physically and digitally. I think it should take a few hours or a few days at the most to collate all the records. Yeah, in my view, I recollect, I think I was a part of the bench which passed the order directing them to, it was headed by Justice Gogoi. And I think that to maintain the records, now they can maintain it secretly. They may be right that they've maintained in such a fashion so as not to disclose the anonymity which was required under the law as it then stood. But they weren't required to maintain records, and it shouldn't take 3 months' time to collate the records. It should take a few days. Even if they're kept at two different places. And once the court had directed that they have to keep this information, it was their bounden duty to keep it in such a manner that when the court asks them to disclose it, they should disclose it as early as possible. Not that they take months to disclose it. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೊಂದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವೂ ಪಡಿಸದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಹಣ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಿಂಧುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಅಸಿಂಧುವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? SBI ಕೇಳಿರುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದು ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿದೆ. SBI ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನುಮತಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಾದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक SBI को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? ये तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए. हमारा दूसरा सवाल यह है कि SBI को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले SBI क्यों जागा? क्या SBI को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है. एक और सवाल है, और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब ATM, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले SBI को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए. यह कितना हास्यास्पद है. SBI पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों SBI पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में ये जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? ये पूरा गोरख धंधा है. अलायंस अब SBI के साथ की गई है. हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है. पहले CBI, ED और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है SBI बन गया है. और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र SBI और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी. क्योंकि जनता सब देखती
और सब समझती है। ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಮುಖ್ಯಧಾರಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಟಿಪ್ಪು, ಶಿವಾಜಿ, ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ನಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ತುಟಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PM ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು 30,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂಥ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈಗ डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, SBI को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए SBI को 5 महीने चाहिए। ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸುಮಾರು 6,500 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು IT ರೈಡ್ ಆದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮೇತ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ CBI ರೈಡ್ ಆದಂತಹ 30 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೂಡ. मोटे तौर से ये बात यह है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, CBI की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है। कुछ कंपनियों के नाम 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, CBI और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है। और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, CBI के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा देना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था ईडी, CBI और इनकम टैक्स की जांच का। मूल मकसद यही था हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है।
ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಡಿ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಎಂಬಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ವಾರ್ತಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಐಟಿ, ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. तो न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री ने थोड़े महीने पहले ये इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया था. हमने क्या किया कि ये जो इलेक्टोरल डोनेशंस है, हमने बीजेपी का लिस्ट ईसीआई वेबसाइट से उठा के हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल द न्यूज़ मिनट जो हमारे हेड ऑफिस बेंगलुरु में, हमने साउथ इंडिया के कंपनीज़ के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि किन किन कंपनियों ने 1 करोड़ रुपये के ज़्यादा दिया है बीजेपी को. तो वो लिस्ट हमने बनवाया 2018 से लेकर 2023 तक. उस लिस्ट को बनवाने के बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि ये सारे कंपनीज़ के मालिक कौन हैं. उसमें लगभग 40% बीजेपी लीडर्स जैसे कि राजीव चंद्रशेखर, पीसी मोहन, ये सब लोकल यहाँ के लीडर्स हैं. उन लोगों ने उनके कंपनियों के द्वारा डोनेशंस दिए हैं, ये सब लीगल है, तो हमने उनको इस लिस्ट से हटा दिया. फिर जो 60% कंपनीज़ हैं उसमें थोड़े से कंपनीज़ हमको पता नहीं है कि उन लोगों ने क्यों दिया, लेकिन कॉर्पोरेट्स देते हैं पॉलिटिकल डोनेशंस, तो उसमें कोई शंका नहीं थी. फिर ऑलमोस्ट 30 to 40% कंपनीज़ जब हमने देखा, हमको ये मालूम पड़ गया कि एक पैटर्न है. अगर फॉर एग्जांपल 2018 को एक कंपनी पे रेड होता है या इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, इनकम टैक्स के और ईडी का अगर इन्वेस्टिगेशन या रेड होता है, तो वो तुरंत ही कुछ महीने बाद भाजपा को पैसे देते हैं, नहीं तो एक साल के बाद पैसे देते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यहाँ पे सालारपुरिया नाम की, बेंगलुरु में एक कंपनी है. उन लोगों ने 2021-22 में ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ दिए हैं उनकी कंपनी की तरफ से और उनके सब्सिडरीज की तरफ से. तो हमने जब देखा कि क्यों ये पैसे दे रहे हैं, क्योंकि 2014 से जब भाजपा एक्चुअली फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए, तब से लेकर ये सालारपुरिया ने 2020 तक नहीं दिया था. तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्यों इस बार क्यों दिया. तब हमें पता चला कि 2018 को एक और कंपनी, हीरा ग्रुप नाम के एक कंपनी है हैदराबाद में, उनके ऊपर ईडी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और ईडी उस समय सालारपुरिया को भी इन्वेस्ट कर रहे थे. शायद इसीलिए सालारपुरिया ने डोनेट किया. ऐसे बहुत सारे कंपनी है. फ्यूचर गेमिंग सर्विसेज, वो कोयम्बतूर की बेस्ड है. उनका ओनर का नाम, उस कंपनी का ओनर का नाम है सैंटियागो मार्टिन. वो यहाँ के लॉटरी किंग माने जाते हैं. उनके कंपनी पे रेड हुआ. अगले ही साल उन्होंने 100 करोड़ दिया प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को. ये प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो दिल्ली में बेस्ड है. वो उनके पैसे से ऑलमोस्ट 80 to 90% बीजेपी को ही देते हैं. सो फ्यूचर गेम्स क्या करते हैं, 100 करोड़ ट्रस्ट में डालते हैं और ट्रस्ट बीजेपी को देते हैं. और हमने 2 और बात देखी, क्या ये कंपनियां कांग्रेस को पैसे दे रहे थे. सो इस 30 में हमने सिर्फ 3 कंपनियों को देखा है जो कांग्रेस को भी पैसे दे रहे थे. हमने ये भी देखा कि 2014 से अब तक इन लोगों ने कितने बार दिया. तो वो लोग सिर्फ उसी साल जब उनका रेड हुआ था उसी साल दे रहे थे, बाकी साल नहीं दे रहे थे. बीजेपी बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है. तो ये सारे कंपनियां अगर भ्रष्ट है और आईटी और ईडी इनके खिलाफ एक्शन दे रहे हैं, तो वही बीजेपी को भी पैसे दे रहे हैं. तो ये थोड़ा सा अजीब जरूर है. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇಣಿಗೆಯಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಂಥ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೆಂಥ ನೀತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. हमने सवाल भी उठाए हैं वित्त मंत्री से, जो आप पढ़ेंगे. तो हमने 3 सवाल उठाए हैं. एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है
कहां कहां से चंदा मिला है। और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग, दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग, जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा, ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है, और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा,
और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2024 ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳನ್ನು ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. स्टेट बैंक का इस याचिका का उनकी समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले दायर करना ये जाहिर करता है कि उनका इरादा यही था कि ये सूचना नहीं दी जाएगी, और ना ही उन्होंने अपनी याचिका में ये बताया कि उन्होंने अब तक इस सूचना को देने के लिए क्या तैयारी या क्या काम किया है। दूसरी बात यह है कि जब ये स्कीम बनाई जा रही थी, विचाराधीन थी, पहला प्रपोज़ल ये था कि इसमें किसी तरह का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंसिस्ट किया था कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिससे हम उसको ट्रेस कर सकें, और एक यूनिक नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक नंबर दिया गया था जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे दिखता है, प्लेन लाइट में नहीं दिखता है। तो जब स्टेट बैंक ने खुद कहा था कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इसको ट्रेस कर सकें, और उनका आज ये कहना कि उसको वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं, ये तो लगता है ठीक नहीं है। तीसरी बात, जो स्कीम का क्लॉज 7 है, 7 नंबर जो पैरा है, तो उसमें ये लिखा है कि अगर 15 दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया ना जाए तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए। इससे ये जाहिर होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स पे नज़र रखता है कि ये कब किसने भुनाया, और अगर नहीं भुनाया तो फिर इसको तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए। तो जब स्टेट बैंक इस पर इतनी पैनी नज़र रखता है तो उनका ये कहना कि हमें 3 महीने या 3.5 महीने लगेंगे, ये तो लगता है हास्यास्पद है। तीसरी बात ये है कि जब ये स्टेट बैंक ये बॉन्ड चालू हुए तो एक कॉमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई एप्लीकेशन के रिस्पांस में ये बताया था स्टेट बैंक ने कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन बॉन्ड से निपटने के लिए। तो अगर 1.5 करोड़ का उन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद भी ये उसको कागज़ में सील्ड कवर में बंद करके रखते आए, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध है और ये ठीक नहीं है। 29 ब्रांचों से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बिके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 19 ब्रांचों से बिके हैं और 14 ब्रांचों में उनको बुनवाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 19 और 14 में कुछ तो ओवरलैप होगा, और ओवरलैप नहीं भी हो तो 29 ब्रांचों की सूचना नहीं चाहिए, 19 और 14 की चाहिए। और एक बात यह है कि कानून ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में ये भी था कि अगर कोई कोर्ट इसके बारे में सूचना मांगे या कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी इंस्टीट्यूशन मांगे तो ये सूचना उनको देनी होगी। तो क्या इसको ये माना जाए कि अगर कोई सीबीआई या पुलिस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टेट बैंक से कुछ इसके बारे में पूछे तो वो कहेंगे कि हम ये आपको 4 महीने बाद देंगे? ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ರಾರಾಜಿಸುವಂಥದ್ದು. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ हल्लके तल्ललागिदे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ऑडिट ट्रेल रखता है। ऑडिट ट्रेल मतलब किसने किस समय पे किस एसबीआई की ब्रांच से कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और आखिरकार किस पॉलिटिकल पार्टी ने वो अपने अकाउंट में जमा करके वहां से नकद निकाला। ये ऑडिट ट्रेल बनाने का एक ही जरिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक सीक्रेट नंबर होता है। ये नंबर द्वारा ही स्टेट बैंक पता कर सकता है कि कहां से वो इलेक्टोरल बॉन्ड चला था और आखिरकार कहां जाके किस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया।
ये सीक्रेट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 2018 में ही बोला था कि बहुत जरूरी है। इसके बिना इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑडिट ट्रेल नहीं होगा, और ऑडिट ट्रेल के बिना इलेक्टोरल बॉन्ड बैंकिंग सिस्टम में चल ही नहीं सकते। इस सब के दस्तावेज रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में आपको मिल जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत विस्तारपूर्वक सरकार को बताया कि ये सब रास्ते बहुत जरूरी हैं, जिससे हिसाब रहे कि कौन खरीद रहा है आखिरकार, क्योंकि जरूरत पड़ने पे आप पुलिस या बाकी महकमों को वो खबर दे सकते हैं कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। खरीदने वालों का KYC मतलब कि वो कौन है, पुख्ता सबूत उसके, उनका ID वगैरह भी लिया जाता है। वो ID ये सीरियल नंबर से लिंक जोड़ के आगे तक देखा जाता है कि किस बैंक अकाउंट में फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स गया। सरकार ने अपने दस्तावेजों में अंदर बताया कि स्टेट बैंक में इतनी काबिलियत है कि जिस पॉइंट पे कोई पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश करना चाहे, उसी वक्त स्टेट बैंक बता सकता है कि शुरू में ये खरीदा किसने था और इस पॉलिटिकल पार्टी को किससे हाथ लगा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड। आप देख सकते हैं ये पत्र SBI ने वित्त मंत्रालय को भेजा था। इसमें SBI का लेटर हेड दिख रहा है। इस पत्र में SBI ने मिनिस्ट्री को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बहुत ही बारीक जानकारी दी है। बताया है कि देश भर में SBI के किस किस ब्रांच में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके, इनकी कीमत क्या थी, कितने फिजिकल यानी कागजी थे और कितने डिजिटल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्र 27 जुलाई 2018 का है और इसी में लिखा है कि उस चरण में इलेक्टोरल बॉन्ड के रिडेम्पशन यानी नकदीकरण की आखिरी डेट 25 जुलाई थी। नकदीकरण मतलब पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड का पैसा अपने अकाउंट में जमा करवाती है। अब आखिरी डेट जुलाई 25 थी, यानी सिर्फ 2 दिन में SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीद और नकदीकरण की जानकारी वित्त मंत्रालय को दे दी थी।